Okay. Good afternoon, students. You can type in the chat box if I am audible to you. Okay. So welcome. This class is going to be your first class for English subject of the first semester of 5-year degree course. So I told you to bring your syllabuses with you. Do you have your syllabus with you? Can I get some responses in the chat box if you have your syllabus? Okay. Tell me, are you able to see my screen? It's a PDF. Just a second, I'll stop sharing and share again. Um, New document. Yes. Are you able to see my screen? Okay. The PDF is visible to you. That is the syllabus. Okay. Nice. So if any interruption is there, any problem is there, if you're not able to see the syllabus or my voice is not audible or there is some network problem, you can type in the chat box and tell me. Okay. So I can see I have um, how many participants? Just need to control. I'm not able to. 46 participants only out of 130. We have almost 80 students of BA LLB and 50 students of BBA LLB. So let's wait one more minute so that all those. So let me introduce myself till then, till the other students are joining. My name is Ishu Saxena. You can you cannot see me in video, but you can see my photograph, my profile picture. So I have been teaching in law faculty for the past 3 years. Since 2017, I've been taking English subject, and like you, I'm graduate in English literature and postgraduate in English literature from the Janaran Vyas University itself. And right now I'm pursuing my PhD in English, and I have qualified national eligibility test, which is for assistant professor. Can you please share the syllabus in chat box? Let me see if I have. I'm not getting the option to attach anything. You know that. Okay. Now I get the option file. So we'll begin with the first unit. I'm trying to share the syllabus. We'll begin with the first unit, which comprises of 55 legal terms. Okay. My computer. Just a second. So that's that file is in D drive. Okay. New folder. Yes. I have sent the syllabus in the chat box. It's uploading. Okay. So let me introduce the first unit. In your entire legal education program, in your 5-year degree course, in other subjects also besides English, you will encounter some terms commonly, recurrently, like in torts, in evidence, or whatever other subjects you have, you will encounter these terms which you will learn here.
So you see the first unit is simply vocabulary. इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सामने ही है. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सर्च नहीं करना है. These 55 टर्म्स के जो मीनिंग है वो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, वो आपको सिर्फ मेमोराइज करने हैं, समझने हैं, लर्न करने हैं. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. आप जानते हैं कि आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. सो अगर 100 मार्क्स हैं तो 20% एक यूनिट का हो गया, राइट? तो 20 मार्क्स की आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई. वो अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट्स में, जो आपका मेन एग्जाम होगा, और आपके टर्मिनल्स में, राइट? Sorry to interrupt, ma'am, but our first unit is synonyms and antonyms. No, which syllabus are you referring? Is it Akshita? Type in the chat box which syllabus, if you can send me that syllabus, because so students, tell me, do you have any different syllabus other than what is being shown on the screen? I think this is your syllabus. I'm referring to the right one. Different. Just send me to that. Just send me that syllabus. Akshita and Kanak, who are telling that that's different. Please send me the syllabus which you have. So just check that in that syllabus, in that revised syllabus, do you have these terms? Do you have these terms? No. So just do me a favor, Kanak and Nupur, just send me that syllabus here. Legal language, importance of. Just do one thing, send that syllabus in the group, in the WhatsApp group or in the chat box. Is anyone sending here? I'm waiting for the syllabus in the group. Okay, they have sent me compulsory paper. Okay, so you don't have these terms. Okay, okay. So I have got the syllabus. Okay. Just a second, huh? So I'm okay. Sorry, I was not familiar with the change. Let me see which topic we can begin with. Okay, so active and passive voice you have. So let's begin with active and passive voice. Okay. Let's begin with active and passive voice. Am I audible? Am I audible? Just type yes in the chat box. Then we'll begin with active and passive. Okay. So I'll have to open, I'll type in my Word document and you will draw that chart in your notebook. Just tell me if you can see my MS Word document opening. Draw a table. Draw a table. Okay.
I'll just start sharing again. MS Word. Is my screen visible now? Okay. Draw a table, which I'm drawing. That will form the basis for your active and passive voice. Okay. In the first column, that table will be, just give me a minute. So before drawing that table, I just wanted to tell you that all of you must be familiar with tenses. How many tenses are there in English? How many tenses are there in English? 12. Okay, that's the total you are telling me, but what are the major three tenses? Past tense, present tense, and future tense. Past tense, present tense, and फ्यूचर टेंस. अब उन तीनों के फर्दर चार चार हो जाते हैं. क्या डिविजन्स चार चार हो जाते हैं? देखिए, तो टेंस आपको क्या बताते हैं कि कोई एक्शन चल रहा है. व्हाट आर द टेंसेस? दे टेल यू अबाउट द टाइम इन विच द एक्शन इज बीइंग डन. तो अब वो एक्शन या तो चल रहा हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस. इफ द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट tense becomes continuous. If the action is completed, that tense becomes perfect. या तो भाई कोई कार्य चल रहा होगा या पूरा हो चुका होगा. पूरा हो चुका है तो वो परफेक्ट हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि कार्य थोड़ा पूरा हो चुका है और थोड़ा अभी भी चल रहा है. जैसे मैं पिछले 10 मिनट से आपकी क्लास ले रही हूँ, तो 10 मिनट का कार्य पूरा हो चुका है और अभी भी चल रहा है. तो वैसा टेंस कौन सा हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस. अभी सब लिखा हुआ आएगा आपके आगे, डोंट वरी. सो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया कि थोड़ा पूरा होके थोड़ा चल रहा है. और जो इन तीनों में ना आए, वो हो जाएगा आपका सिंपल. सिंपल टेंस, जैसे राम स्कूल जाता है. सो ये ना तो इसमें कार्य चल रहा है, ना इसमें कार्य पूरा हो चुका है, और ना इसमें कार्य कुछ पूरा होके कुछ चल रहा है. जो तीनों में ना आए वो सिंपल है. सिंपल या इनडेफिनेट जिसको आप कहते हैं. तो ये जो चार डिविजन्स हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल, ये इन तीनों टेंसेस में चलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. तो इसलिए 3 into 4 12 हो जाते हैं. ठीक है, तो 12 आई थिंक बेसिक आप सबको समझ में आ गए कि 12 जो टेंस के डिविजन्स हैं. अब हम सबसे पहले चलिए कंटिन्यूअस टेंस का लेके चलते हैं. तो आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए ऊपर कंटिन्यूअस टेंस. I hope it's visible. Let me increase the font size. Okay. Is it visible? Yes. So कंटिन्यूस टेंस आपने लिखा, आप हेडिंग डाल लीजिए, उसके नीचे आप टेबल बनाइए. 5 into 5 की मतलब 5 कॉलम्स और 5 रोज. यस, लाइक दिस. कंटिन्यूस टेंस लिख के आपने बनाई. उसमें जो टॉप 2 कॉलम्स हैं, यहां पे आप लिख लीजिए how to merge cells. Okay. हाँ, यहां पे आप लिख लीजिए एक्टिव वॉइस, और नेक्स्ट 2 में लिख लीजिए पैसिव वॉइस. ठीक है,
नेक्स्ट सेल में लिख लीजिए पैसिव वॉइस। आपको इससे हर टेंस में क्या चेंज होता है पैसिव वॉइस में वो समझ आ जाएगा। ये टेबल बहुत बेसिक है। आप इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, उनका सारा कॉन्सेप्ट इन टेबल से क्लियर हो जाएगा। ये 4 टेबल्स हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल टेंस की। इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं तीनों टेंसेस में, जस्ट सी। ओके, तो ये जहां पर भी आप बना रहे हैं, मैं नहीं दिखूंगी किरण आपको, आपको बस मेरा स्क्रीन दिखेगा। आई वोंट बी विजिबल, आई कांट सी यू ऑन द स्क्रीन। आपको अगर मेरा MS वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है देन दैट्स फाइन। आई एम टेकिंग योर क्लास फ्रॉम माई पर्सनल कंप्यूटर जिसमें कैमरा नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम माई फोन। ठीक है, सो आई होप यू हैव ड्रॉन दैट टेबल। आपने हेडिंग डाल ली है, उसके नीचे आप हेडिंग डालिए एक्टिव वॉइस के नीचे मेन वर्ब, एंड नेक्स्ट कॉलम में डालिए हेल्पिंग वर्ब। सबको पता है मेन वर्ब क्या होती है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो आई एम में, आई एम प्लेइंग फुटबॉल में मेन वर्ब कौन सी है? आप लोग जवाब टाइप कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस आई एम प्लेइंग फुटबॉल? गुड, प्लेइंग। फुटबॉल कौन लिख रहा है भाई? Okay, good. And what is the helping verb in the sentence I am playing football? Am. Good. तो सबको कॉन्सेप्ट पता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब तो मुख्य क्रिया जो है, मुख्य एक्शन जो हो रहा है अपना खेलने का, प्लेइंग, और उस क्रिया को जो कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती है, सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं, जो सहायता कर रही है क्रिया, क्योंकि एम के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो खेल तो अपना मेन वर्ब हो गई, रहा हूं सहायक क्रिया हो जाती है। सो सिमिलरली प्लेइंग इज द मेन वर्ब हियर एंड एम बिकम्स द हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली आप पैसिव वॉइस के नीचे भी यही हेडिंग्स डाल लीजिए। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब ये जो 3 कॉलम्स हैं, यहां पर आ जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस, उसके नीचे पास्ट और उसके नीचे फ्यूचर। तो अगर जो मैंने अभी एग्जांपल बोला, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, वर्तमान में कार्य चल रहा है। ओके, सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एक्टिव? मेन वर्ब इन एक्टिव फर्स्ट फॉर्म आया प्ले, राइट? उसके बाद प्लस साइन लगाइए और उसके बाद लिखिए ING। सो दैट इज द फॉर्म ऑफ योर वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ गए आप टेबल कैसे बन रही है? टेबल आपको ये बता रही है कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फॉर्म रहेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की हमने? एम। एक तो एम हो गई क्योंकि आए था, ही होता तो ही होता, ही डैश प्लेइंग फुटबॉल इज। गुड, तो इज एम आर आपके बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसी को आप पास्ट टेंस में कहते आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लेइंग देखो सेम रहा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हर एक में सेम रहेगा तीनों टेंसेस में, क्योंकि कार्य चल रहा है। लेकिन अपनी हेल्पिंग वर्ब बदल गई, क्या? वॉज या वर।
सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देती जा रही हूं, अगर आप चाहो तो अपने साइड में एग्जाम्पल्स लिख सकते हो नोटबुक में, इफ यू थिंक यू विल फॉरगेट द एग्जाम्पल्स। All of you must draw this table in your notebooks and keep that very carefully. आपके आगे के सेमेस्टर्स में भी काम आएगा, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर्स में भी अगर रिपीट होती हैं पैसिव वॉइसेस तो ये बहुत यूजफुल है। सेम रिपीट कर दीजिए फ्यूचर में भी, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने विल क्यों नहीं यूज किया, शैल क्यों यूज किया। That reason I will tell you when we will do the topic models कि shall और will में क्या difference होता है। तो I shall be playing football, तो आप helping verb observe करो, will be और shall be, ठीक है। will be या shall be में से helping verb होती है। तो examples मैं repeat कर रही हूँ, I am playing football, I was playing football, I shall be playing football. नाउ इसी की अब आप पैसिव वॉइस देखना, जस्ट सी दिस सेंटेंस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या मुझे कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है कि पैसिव वॉइस में मेनली होता क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन कर रहा होता है। सब्जेक्ट इज द person, is the doer, is the agent who does action. तो सब्जेक्ट यहां आई है, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। क्या खेला जा रहा है यहां पर? फुटबॉल। तो जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा है, वो आई था, और उसके एक्शन का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। भाई तीन ही तो चीजें हैं वाक्य में, एक करता है सब्जेक्ट, एक उसका एक्शन है, और एक वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस एक्शन यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है पैसिव वॉइस में, आई नो ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कुछ लोग बहुत ही फेमिलियर होंगे इस टॉपिक से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी परिचित नहीं है इससे, या बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है इस टॉपिक में, वेल वर्स्ड नहीं है, हमेशा उनको प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। आप पैसिव वॉइस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे अगर आप सही सही पहचान पाते हो कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट क्या है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो भी अपन एक अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इज पैसिव वॉइस यूज्ड। भाई एक रीजन तो सिंपल मैं बताती हूँ, जिसको पहले रखते हैं मतलब क्या, उसको अपन प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो प्रधान है, वो मुख्य है। तो अगर अपन ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, मतलब टू गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, टू मेक द ऑब्जेक्ट प्राइमरी। तो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? फुटबॉल को अपन को पहले लाना है, अपन फुटबॉल पहले ले आए, फुटबॉल। अब अपन टेंस पहचानेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, दूसरा स्टेप है टेंस पहचानना। इसीलिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, so that we can use the correct form of the verb. So tense we know कि am playing आया है तो ये present continuous है। अब इसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहती हैं? इज आर एम तो रहता ही है, साथ में जुड़ जाता है बीइंग। इज आर एम तो रहता ही है, साथ में क्या जुड़ जाता है? बीइंग। तो फुटबॉल के साथ क्या आएगा? इज। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आया, इज बीइंग प्लेड बाय
मी। तो आप मेन वर्ब ऑब्जर्व करो, कौन सी आई इसमें, प्लेड। ठीक है, एक बात याद रखना, हमेशा पैसिव में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहती है, कोई भी टेंस हो। आठों में से 12 अभी हमने बताए, आप लोगों ने बताया कि 12 होते हैं, उनमें से 4 में पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो जब आएगा टेंस तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं बनती। बट जिनमें बनती है 8 टेंसेस में, उनमें हमेशा मेन वर्ब कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म। चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे सिंपल हो, main verb will always be third. So this thing is to be memorized by you, is being played. Okay, इसे हाईलाइट। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल लें तो प्लेड, प्लेड क्या था आपका, थर्ड फॉर्म था। पास्ट का मैं एग्जांपल लूं तो क्या बन जाएगी, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल का, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। सो यहां पर आप लिख लीजिए थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के नीचे पास्ट में भी, और हेल्पिंग वर्ब्स में लिख लीजिए वॉज, वर्ब में से कोई एक आएगा प्लस बीइंग। तो हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ क्या चेंज होता है, बीइंग जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ बीइंग जुड़ जाता है। Just a second. ओके, बीइंग जुड़ गया यहां पर। नाउ फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस हेल्पिंग वर्ब को, सो दैट यू रिमेंबर कि आपने चेंज क्या किया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि जैसे आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही होंगी, इसका पैसिव वॉइस बनाना वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बनती है, बिकॉज द ग्रामर कंसिडर्स कि उस टेंस में पॉसिबल नहीं है बनना, पैसिव वॉइस बनाना उस टेंस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यहां पर डैश कर लीजिए इसको, इन इसकी जगह पर यू कैन पुट अ सिंपल डैश, जस्ट टू टेल की द पैसिव वॉइस इज नॉट फॉर्म्ड इन दिस टेंस। सो ये टेबल आपकी बन गई पूरी कंटिन्यूस टेंस की, राइट जिसमें मैं वापस रिपीट कर रही हूं, एक्टिव वॉइस में आपका मेन वर्ब होता है तीनों टेंसेस में, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आईएनजी किसकी पहचान हो गई कि कार्य चल रहा है, प्लेइंग, ईटिंग, रीडिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। आईएनजी will always denote that the action is being continued, hence the tense is continuous। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो। इज एम आर है तो प्रेजेंट, वॉज वर है तो फ्यूचर पास्ट, और विल बी और शैल बी है तो फ्यूचर। और पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी, आप खुद देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, प्लेड, प्लेड आया, और कंटिन्यूस में सिर्फ क्या जुड़ जाता है, इज एम आर तो रहता ही है, प्रेजेंट में बीइंग जुड़ गया, और पास्ट में वॉज वर्ग के साथ बीइंग जुड़ गया। क्लियर। अब ये वाला जो टेंस हमने किया, ये किन किन को समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आप यस लिख सकते हो, कोई डाउट है इसी में तो आप पूछ सकते हो, कोई एग्जाम्पल आपको वापस सुनना हो।
Understood. All the examples, right? So what is the first step? You will identify the subject and object. And what is the second step? You will identify the tense and interchange accordingly. पहले दो स्टेप्स में तो आपको आइडेंटिफाई करना है, सही सही, जल्दबाजी में गलत मत करना. एग्जाम्स में कई बार आप लोग हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और थोड़ा गड़बड़ कर देते हो. तो आराम से आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही पकड़ लिए, पहचान लिए, टेंस सही पहचान लिया, तो आप सही हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसको इंटरचेंज कर सकते हो. नाउ लेट अस प्रोसीड टू परफेक्ट टेंस. वही हेडिंग डाल लो आप, परफेक्ट टेंस. ड्रॉ द सेम टेबल. 5 by 5 की टेबल बनाइए. वही हेडिंग्स आएंगी. है ना. सो आई थिंक आई कैन यूज दिस सेम टेबल. मैं इसको डिलीट करके यूज कर रही हूँ, आपने ड्रॉ कर लिया होगा, है ना. यहाँ पर मैं परफेक्ट टेंस यूज कर रही हूँ. अब आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल दूं. परफेक्ट में मैंने बताया था कार्य पूरा हो चुका होता है. अभी कंटिन्यूस में तो कार्य चल रहा था. मैं फुटबॉल खेल चुकी हूं. आई हैव प्लेड फुटबॉल. सो वर्तमान में कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस. अब आप ऑब्जर्व करो, आई हैव प्लेड फुटबॉल में प्लेड कौन सा फॉर्म था? थर्ड. आई हैव प्लेड फुटबॉल में प्लेड वॉज द थर्ड फॉर्म. और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी आई? हैज और हैव. तो हैज ऑब्लिक हैव बिकम योर हेल्पिंग वर्ब्स. अब इसका पैसिव वॉइस कीजिए. आई हैव प्लेड फुटबॉल में आई ऑब्जेक्ट है और फुटबॉल सब्जेक्ट बनेगा. तो फुटबॉल अपन पहले ले आए. आई का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बन जाता है ना. हिंदी में अपन बोलते हैं मैं और मेरे द्वारा या मुझे. तो मैं तो हो जाता है आई, और मुझे या मेरे द्वारा तो वो हो गया बाय मी. आपने केसेस पढ़े होंगे इंग्लिश में, नहीं तो कर्ता कर्म वाले तो पढ़े ही होंगे हिंदी में, कर्ता ने कर्म को. तो ये जो कारक होते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश में केसेस कहलाते हैं. तो आई जो है वो कर्ता कारक है और मी जो है वो कर्म कारक है. इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. कर्ता कारक इज नॉमिनेटिव केस. तो एक्टिव वॉइस में देखो नॉमिनेटिव केस था, आई कार्य जो कर रहा है वो पहले आ रहा है. और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया, डूअर ऑब्जेक्ट बन गया, मी बन गया. ठीक है. आई हैव प्लेड. सो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट. अब वहीं पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट. यहां पे मैं अपडेट कर देती हूं. इसके हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे. ओके मैंने आंसर बताया ही नहीं इसका. आई हैव प्लेड फुटबॉल का फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी. क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा. तो आप देखो हैज और हैव तो सेम रहे पैसिव में, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में. साथ में क्या जुड़ गया? बीन. साथ में क्या जुड़ गया? बीन. क्लियर.
तो बीइंग तो किसकी पहचान हो गई, BEING कंटिन्यूअस की, और BEEN पहचान हो जाएगी परफेक्ट की। तो मैं, ये आपका आंसर हो गया, फुटबॉल हैज बीन। तो आपने देखो यहाँ हैज हैव में से हैज आएगा क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है, कुछ अगर प्लूरल होता तो हैव आ जाता। फुटबॉल हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगाई हमने वर्ब की, प्लेड, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म रहती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म रहती है, परफेक्ट में प्लेड बाय मी। वहीं पास्ट अगर हो तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हैड। आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल, इसका पैसिव क्या बनेगा, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी, had been played by me. So what is the helping verb of passive, had been. Clear? Had been is the helping verb of passive in perfect past perfect. थर्ड फॉर्म सेम है। फ्यूचर में I shall have played football, तो आप देखो ऑब्जर्व करो, परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझो, कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ, प्रेजेंट टेंस आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुकी थी, आई हैड प्लेड फुटबॉल, पास्ट में मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी। जिनको समझ नहीं आता कि ये कैसे डिवीजन होता है टेंस का, किस आधार पे है, उनके लिए कि कैसे टेंस बदल रहा है और उसका मीनिंग बदल रहा है, कि कार्य तो पूरा हो चुका है लेकिन किस में, फ्यूचर में, मैं खेल चुकी होंगी इन फ्यूचर, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल। सो शैल ऑब्लिक विल हैव, ये हो जाते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स, और मेन वर्ब प्लेड आया जो कि थर्ड फॉर्म है। मैं एग्जांपल यहां लिख रही हूं नीचे, I shall have played football. So the passive voice will be football shall have been played by me. Shall have been, तो वापस यहां पर जुड़ गया यहां पर थर्ड फॉर्म तो आपका वही रहेगा, आप लाइन खींच लेना बीच में यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन। शैल विल जिस हिसाब से मैं बताऊंगी आपको, है ना, शैल या विल प्लस हैव बीन। क्लियर? सो फुटबॉल शैल हैव बीन प्लेड बाय मी। आप ऑब्जर्व कर लो, थर्ड फॉर्म आ रहा है पैसिव में हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमने लिखी हैं टेबल में उस हिसाब से। सो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका होगा, मैं फुटबॉल खेल चुकी होंगी, मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका होगा। तो कुछ नहीं होता है इसमें, पैसिव वॉइस में सिर्फ ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। हिंदी से अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो हिंदी में अपन वाच्य कहते हैं वॉइस को, तो कर्तृ वाच्य इज योर एक्टिव वॉइस, एंड कर्म वाच्य जिसमें कर्म पहले आ जाए दैट इज योर पैसिव वॉइस। ओके, क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर गुड फ्रॉम हिंदी मीडियम, सम स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी व्याकरण, तो उसको वो रिलेट करके समझ सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो, कनक ने एक सवाल पूछा है, बहुत सही पूछा है कि मैम आपने शैल भी यूज किया, विल भी यूज नहीं किया। आप सही कह रहे हो, विल भी आना चाहिए था, लेकिन अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वो
इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं विल और शैल का डिफरेंस आपको मॉडल्स जब कराऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो अभी सिंपली आई एम टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, ठीक है। डोंट वरी, शैल विल का डिफरेंस अपन करेंगे। अब आपको परफेक्ट टेंस का आई होप आपने टेबल बना लिया होगा, एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कोई डाउट है परफेक्ट टेंस में तो आप पूछिए। एंड 40 मिनट्स की अपनी मीटिंग है क्योंकि जूम का बेसिक प्लान है। सो नाउ मीटिंग ओवर हो सकती है, मतलब कट सकता है कॉल कभी भी। सो अभी मैं आपको अनम्यूट का अलाउ कर रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में अपन कल ही है आई थिंक करेंगे दोनों जो बचे हुए टेंस हैं अपने। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो हम जो बचे हुए टेंसेस हैं परफेक्ट, कंटिन्यूअस और सिंपल, वो कल कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं वन बाय वन। हाँ, so tomorrow what will I do? चलो अभी तो I was not prepared for this. I just got to know at the last moment कि syllabus change हो गया है, तो मैंने आपको word document में बना के बताया। कल मैं PDF तैयार रखूंगी तो मेरा लिखने का टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। You can simply see the notes on the screen and you can write it down. Any student wants to ask can ask. किसी ने अनम्यूट तो किया है बट कुछ पूछ नहीं रहे हैं। मैम ये फुटबॉल विल आना चाहिए ना मैम, सिंगुलर है ना ये? हाँ हाँ, तो देखो विल और शैल फुटबॉल में तो का जो डिफरेंस है वो सिंगुलर के बेसिस पे नहीं होता, वो सेंस के हिसाब से होता है। तो ठीक सिंगुलर है और मैम। प्लूरल का डिफरेंस नहीं पड़ता विल पे। मैं चलो आपको बता ही देती हूँ विल और शैल में क्या डिफरेंस है। जब अपन फर्स्ट पर्सन समझते हो आप, आई मी और आई वी मी, है ना, यस मैं, मैम। उसके साथ अपन क्या सेंस बताना चाहते हैं कि भविष्य में अपन सिंपली काम करेंगे, मतलब फ्यूचर वाला सेंस बताना चाहते हैं, तब शैल यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ वो सेंस बताना चाहे ना कि फ्यूचर में होगा, हु इज राइटिंग दिस? आप लोग, कोई और लिख रहा है यानी मेरे स्क्रीन पे क्यों आ रहा है? ओके, सो जब आप थर्ड पर्सन के साथ बताना चाहते हैं कि भविष्य में कोई काम होगा, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी होगी, तब विल आता है। समझ गए? तो विल और शैल किस पे डिपेंड कर रहा है? पर्सन पे, कि फर्स्ट पर्सन है या यस थर्ड पर्सन। तो आप सही यस हो, मैम। विल आना चाहिए था यहाँ पर, बट क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। तो अब आप याद ठीक है रखोगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल सिंपल फ्यूचर बताने के लिए, और सेकंड और थर्ड एक जैसे ही होते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ विल आता है। क्या बताने के लिए? कि सिंपली कोई काम भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। हाँ। तो फुटबॉल तो थर्ड पर्सन था, अगर यहाँ यू होता, सेकंड पर्सन हो जाता है यू। भाई जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन होता है ना, जो बोलने वाला है वो तो मैं, फर्स्ट पर्सन, जिसको आप कह रहे हो सामने तुम, यूज इज सेकंड पर्सन, ठीक है। और हम दोनों के अलावा जो हो जाए वो थर्ड पर्सन, ही शी दे। तो पर्सन तो क्लियर है ना आपको? तो यस यू मैम। अगर होता यहाँ पर, सेकंड पर्सन होता तो भी विल होता, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड के साथ में विल और फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल। क्लियर? ठीक है। यस हाँ, मैम। पीडीएफ इसका मतलब आप वो नहीं बना रहे हो, साथ में लिख नहीं रहे हो? मैम मैम लिखे। हाँ पूछिए। मैम शेल तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा और विल सेकंड और थर्ड के लिए होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बताने के लिए?
और मैम सिंपल फ्यूचर सेंस कि यू विल डू समथिंग इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में कुछ काम होगा। हाँ, कैन यू यूज गूगल मीट? चंद्र प्रकाश इज सेइंग, देखो मेरा ओरिजिनली गूगल मीट यूज करने का था, बट आई वाज टोल्ड कि ऑल द अदर टीचर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आर यूजिंग जूम ऐप। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि भाई एक बार आप गूगल मीट पे आ रहे हैं और बाकी 4 टीचर्स के लिए आप जूम पे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही मैं जूम पे आई हूँ। ठीक है, तो इट्स बेटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें, सभी टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म यूज करें। तो जैसे मैंने आपको शुरू में आज बताया था, देखो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं सारा पूरा आज का भी मीटिंग रिकॉर्ड होगा, तो इफ पॉसिबल आई विल अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई विल शेयर द लिंक, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और नहीं तो मैं आपको ग्रुप में आई विल सेंड द पीडीएफ बना के ना, नोट्स में सेंड कर दूंगी आपको। कैन यू शेयर द रिवाइज्ड सिलेबस? प्रज्ञा इज टेलिंग मी आई माई सेल्फ हैव रिसीव्ड इट, तो मैं आपको ग्रुप में अभी सेंड कर दूंगी। एनी अदर डाउट? कोई डाउट नहीं है? प्लीज एक्सप्लेन टेबल वंस अगेन। मनीषा मेघवाल, कौन सी टेबल कह रहे हो आप? मनीषा मेघवाल, कौन सी टेबल कह रहे हो? कि मनीषा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। परफेक्ट टेंस वाली? ओके, परफेक्ट टेंस में भी कौन सा? देखो मैं सारे एग्जांपल्स एक बार बता दूं। एनोटेट, एनोटेशन का ऑप्शन, हाउ टू लाइक unmute it because someone else is able to write on my screen. No, clear all drawings. Okay, please don't draw. सी, परफेक्ट का सिंपली मतलब होता है, मनीषा आई एम जस्ट टेलिंग इट फॉर यू, कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वो प्रेजेंट में हो सकता है, फुटबॉल खेल चुकना, जो अपन चुका कहते हैं ना हिंदी में, चुका है या चुका था, वो होता है परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ, तो इसका पैसिव हो जाएगा आई हैव प्लेड फुटबॉल का फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी है। पास्ट में होगा मैं फुटबॉल खेल चुकी थी, कार्य जो है वो भूतकाल में पूरा हो चुका है, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जा चुकी थी। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी एंड आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल मींस फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, तो फुटबॉल अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह ले आए। फुटबॉल हमने टेंस के हिसाब से सही वर्ब लगाई, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म लगाई, प्लेड बाय मी, क्योंकि जो जो आपका सब्जेक्ट है आई, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय लग जाएगा, मेरे द्वारा, है ना। ही होता तो बाय हिम हो जाता, किसके द्वारा कार्य हो रहा है? बाय मी, ठीक है। लेकिन बीच में वर्ब क्या आ रही है जो आपकी टेंस के हिसाब से सही लगनी चाहिए? विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहती है। क्लियर? तो आपको बस ये याद रखना है, अगर आपने समझा हुआ नहीं है तो आपको ये टेबल पूरी मेमोराइज होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब लगती है। अगर आपको ये याद है तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। कैन यू सजेस्ट बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश? मैम इन एवरी सेमेस्टर सिलेबस विल चेंज। युक्ति, यस, थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज होगा, हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स सिमिलर हो, मेल खाएं, लेकिन चेंज तो होगा। मैं आपको बुक बता रही हूँ, रेन एंड मार्टिन। आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। रेन एंड मार्टिन, ये ग्रामर की बाइबल कही जाती है, ठीक है। कोई भी ग्रामर का ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको, मेजर टॉपिक जो आपको इसमें नहीं मिलेगा। और मतलब जो भी सारी बुक्स हैं आपके स्कूल बुक्स जो भी हुआ करती थी 7th 8th में, या आपकी ग्रामर बुक्स हुआ करती थी, वो इसी से डिराइव्ड होती हैं।
रेनन मार्टिन से ही बेसिकली सारी ग्रामर बुक्स निकलती हैं। तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। बिल्कुल, प्रज्ञा इज टेलिंग मी, जिनके पास नहीं है रेनन मार्टिन की हार्ड कॉपी नहीं है, वो नेट से इजीली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसके पीडीएफ के साथ साथ की भी डाउनलोड कर सकते हो। की मतलब जिसमें आंसर्स उसके लिखे हुए होते हैं, तो जो भी एक्सरसाइजेस उसमें हैं, आपको करेक्ट आंसर भी उस की में मिल जाएंगे, राइट। दूसरी बुक देखिए, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए 2 बुक्स काम आएंगी। एक तो रेनन मार्टिन, दूसरी बुक्स गंगा सहाय शर्मा, जो रंजना रैना ने बोला है। ये आपको आपकी लाइब्रेरी से मिलती है बुक। आई डोंट नो अभी आपका एक्सेस है लाइब्रेरी में या नहीं, बट आप चाहो तो खरीद सकते हो इसे मार्केट से, जालौरी गेट से। गंगा सहाय शर्मा आपके लिए क्यों यूजफुल है? जो आपकी लीगल इंग्लिश है उसके लिए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है या ट्रांसलेशन है, तो उन टॉपिक्स के लिए गंगा सहाय शर्मा काम आएगी। आई एम टाइपिंग द नेम ऑफ द बुक हियर, टू गंगा डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा। We have to buy both the books. युक्ति, that is available, PDF तो available है रेनन मार्टिन का। अगर आप खरीद सको तो अच्छी बात है। फ्यूचर के लिए अगर आप इंग्लिश के लिए हमेशा कोई बुक रखना चाहते हो तो अच्छी बात है अगर आप ले सको। बाकी PDF से काम चल जाएगा आपका, तो you have the choice. We have to buy both the books. गंगा साय शर्मा तो आप लाइब्रेरी से ट्राई कीजिएगा लेने की, क्योंकि खूब सारी कॉपीज है वहां पर। अगर नहीं मिल पाता है लाइब्रेरी से तो आप खरीदने का सोच सकते हो। डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, ये आएगा आपका लीगल लैंग्वेज। एंड जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू द नेम। हाँ, आप नाम लिख लीजिए बुक का, गंगा सहाय शर्मा। लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश। लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग and general English. Okay, I've typed the names of both the books. Clear? Renan Martin and Dr. Ganga Sahai Sharma. ठीक है? So चलो, आपने आज जो किया आप उसको रिवाइज करना, and tomorrow we will complete the remaining 2 and then we will solve some exercises also. Okay? चलिए, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ अभी। Anyone wants to say something? Okay. Thank you. Thank you. We'll meet you tomorrow. How will I ask you? आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कल क्लास होगी दोबारा, आप तब पूछ सकते हैं। दिव्यांशु। Okay, thanks all. I'm ending the meeting.